Hello friends, good mornings. Today we are going to start next points. Enthalpies of physical transformation. जो आज आपको पॉइंट देखना है दैट इज एंथैल्पीज ऑफ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन. जो अलग अलग सब्सटेंस है उस सब्सटेंस का वन फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म. उसको कन्वर्जन करने के लिए दे आर रिक्वायर्ड टू दी सम अमाउंट ऑफ दी क्या लगती एनर्जी लगती है. देयरफॉर उसके बारे में आपको ये क्या करना स्टडी करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल गिव द हेडिंग एंथैल्पीज ऑफ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन. Enthalpies of physical transformation. Enthalpy of phase transition. सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए enthalpies of phase transition. What is my phase transition किसे कहते हैं या phase change किसे कहते हैं. Enthalpies of phase transition या enthalpies of phase transition. A substance is converted into one form to another form is known as उसे क्या कहते हैं phase transition. Solid substance is converted into liquid या liquid is converted into what gas is known as उसे क्या कहते हैं phase transition. A substance is converted into one state to another state is known as उसे क्या कहते हैं phase transition कहते हैं. Okay, the common observation, the substance is converted into one state to another state. They are required to the उसको क्या लगती है कुछ एनर्जी लगती है. Therefore, they are known as उसे क्या कहते हैं एंथैल्पीज ऑफ द फेज ट्रांजिशन. एक सब्सटेंस है उसका एक स्टेट में का कन्वर्जन अनदर स्टेट में करना है तो दे आर रिक्वायर्ड टू दी सम अमाउंट ऑफ एनर्जी. दे आर नोन एज उसे क्या कहते हैं एंथैल्पीज ऑफ द फेज ट्रांजिशन. आपको फेज ट्रांजिशन क्लियर होना चाहिए. सिर्फ जो अलग अलग सब्सटेंस है उसके एक स्टेट में का कन्वर्जन अनदर स्टेट में करना है. दे आर रिक्वायर्ड टू दी सम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज नोन एज एंथैल्पीज ऑफ द फेज ट्रांजिशन. एवरी सब्सटेंस इज रिक्वायर्ड टू द डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी. अलग अलग सब्सटेंस को अलग अलग अमाउंट ऑफ की क्या लगती एनर्जी लगती है. Because we know that the three physical state of the matter, कितने physical state of matter, the three physical state of the matter are the present the different type of the उसमें अलग अलग क्या रहता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रहता है. Therefore they are required to the different amount of energy. अलग अलग सब्सटेंस है अलग अलग फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर है. दैट मैटर इज कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. दे आर रिक्वायर्ड टू द डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी बिकॉज इन देयर इज प्रेजेंट द डिफरेंट क्या रहता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रहता है. आणि दिस प्रोसेस इज नोन एज उसे कौन सी प्रोसेस कहा जाती है एंथैल्पीज ऑफ द फेज ट्रांजिशन. Okay, here we discuss the different enthalpies of the phase transition. यहाँ पे आपको अलग अलग enthalpies of the phase transition का क्या करना है स्टडी करना है. That is the first one is enthalpies of the phase transition. पहले देखेंगे. Give the heading enthalpy of fusion. What is my enthalpy of the fusion? The enthalpy change. The enthalpy change या heat change is accompanying
when 1 mole of the solid, when 1 mole of solid substance is a converted into, किसमें कन्वर्जन होता, लिक्विड में, at its melting points is called, उसे कहते हैं enthalpy of the fusion. What is my enthalpy of the fusion? The enthalpy change या heat change is accompanying the, when 1 mole of the solid substance is converted into liquid at its melting point is called enthalpy of the fusion. It is also known as a molar enthalpy of the fusion. उसे क्या कहते हैं, मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहा जाता है. इट इज ऑल्सो नोन एज अ मोलर एंथैल्पी ऑफ द फ्यूजन. द एंथैल्पी ऑफ द फ्यूजन इज अ रिप्रेजेंटेड बाय द, उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एंथैल्पी ऑफ द फ्यूजन. It is the enthalpy of the fusion is represented by this way, enthalpy of the fusion. The process of the fusion is takes place, the process, कौन सी process, the process of the fusion is takes place at a constant temperature and standard pressure. The process of the fusion is takes place at a constant temperature and standard pressure is known as, उसे क्या कहते हैं, standard enthalpy of the fusion. What is my standard enthalpy of the fusion? The process of the fusion is takes place at a constant temperature and standard pressure is known as the standard enthalpy of the fusion, and they are represented by the delta H0 FUS. Okay, now for example, अभी यहाँ पे example देखेंगे. For example, the solid ice is converted into, solid ice का conversion किसमें किया मैंने, liquid water में किया है. Therefore, that if its temperature 0 degree centigrade को, and its enthalpy of the fusion is, उसकी enthalpy of the fusion है, that is a +6 kilojoule per mole है. If the water is a freezes, water क्या हो गए तो freeze हो गए तो the process is क्या होती है, रिवर्स होती है. that is enthalpy of the freezing is equal to क्या, माइनस स्टैंडर्ड enthalpy of what, फ्यूजन. जब प्रोसेस ये क्या हो गई, रिवर्स हो गई, तो लिक्विड वाटर का कन्वर्जन सॉलिड में हो गया तो प्रोसेस रिवर्स होती है. ओनली सेम द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन सिर्फ उसका साइन क्या होता है, चेंज होता है, क्योंकि उसको उतनी अमाउंट ऑफ द हीट क्या करना पड़ती है, इवल करना पड़ती है. ओके, देयरफॉर H2O लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू, उसका कन्वर्जन किसमें किया मैंने अभी, सॉलिड है इसमें. एंड देयरफॉर द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द, उसकी फ्रीजिंग की कितनी रहेंगी, -6 किलोजूल पर मोल है. Okay, the enthalpy of the fusion may be expressed, the enthalpy of the fusion किस तरह से और एक्सप्रेस कर सकते हो, the enthalpy of the fusion is may be express. देखिए डेल्टा H0 FUS is equal to, that is the standard enthalpy of the liquid minus standard enthalpy of the किसकी, सॉलिड की. ख्याल में रखिए, the enthalpy of the fusion is may also express, that is the standard enthalpy of the fusion is equal to standard enthalpy of the liquid minus standard enthalpy of the किसकी, सॉलिड की. If the solid substance is converted into liquid, the process is the, वो कौन सी प्रोसेस रहती है, प्रोसेस इज द व्हाट, एंडोथर्मी. सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड में कन्वर्जन करना है तो देयर मस्ट बी, उसको हीट क्या करना पड़ती है, एब्जॉर्ब करना पड़ती है. देयरफॉर द एंथैल्पी ऑफ द फ्यूजन, ये कौन सी प्रोसेस है, एंडोथर्मिक. देयरफॉर
the enthalpy of the fusion is present in the enthalpy of the fusion, ये किस में रहता है, पॉजिटिव में रहता है, बिकॉज देयर इज अंडरगोज द, वो कौन सी प्रोसेस अंडरगोज होती है, एंडोथर्मिक होती है. ओके, दिस इज द फर्स्ट enthalpy of the phase transition, enthalpy of fusion. नेक्स्ट अभी सेकंड देखेंगे, enthalpy of vaporization देखेंगे. enthalpy of vaporization, what is my enthalpy of the vaporization किसे कहते हैं? enthalpy of vaporization, what is my enthalpy of the vaporization? The enthalpy change or heat change is accompanying when 1 mole of the liquid substance is converted into, उसका किसमें कन्वर्जन होता है, गैसियस स्टेट में होता है, is converted into gaseous state at its boiling point, इस स्क्वाड उसे कहते हैं एंथैल्पी ऑफ द वेपोराइजेशन. डिफाइन द एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, द एंथैल्पी चेंज when 1 mole of the liquid substance is converted into gaseous state at its boiling point, इस स्क्वाड उसे क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ द वेपोराइजेशन. इट इज ऑल्सो नोन एज, उसे क्या कहते हैं, मोलार एंथैल्पी ऑफ द वेपोराइजेशन. ख्याल में रखिए, इट इज ऑल्सो नोन एज अ मोलार एंथैल्पी ऑफ द वेपोराइजेशन and it is a denoted by the, उसको किससे डिनोट करना है, डेल्टा एच VAP. ओके, if the process of the vaporization is takes place at a constant temperature and standard pressure को हो रही होंगी तो is known as, उसे क्या कहते हैं, standard enthalpy of the vaporization. What is my standard enthalpy of vaporization? If the process of the vaporization is carried out at constant temperature and pressure, is known as a standard enthalpy of the vaporization. उसको किससे डिनोट करना है, डेल्टा H0 VAP. इसे कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द वेपोराइजेशन. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हूं. फॉर एग्जाम्पल, दैट इज अ लिक्विड वाटर is converted into 373 केल्विन को कन्वर्जन किसमें कर रहा हूं, दैट इज अ गैसियस वेपर में, दैट इज अ वाटर वेपर में कन्वर्जन हुआ. एंड इट्स आर द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द वेपोराइजेशन है प्लस 40.6 किलो जूल पर मोल है. ओके, दैट इज नोन एज, उसे कहते हैं एंथैल्पी ऑफ द वेपोराइजेशन. सिंपल फेज ट्रांजिशन है अ प्रोसेस. व्हाट इज माय एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, द एंथैल्पी चेंज when 1 mole of the liquid substance is converted into gaseous state at its boiling point is known as, उसे क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ द वेपोराइजेशन कहा जाता है. नेक्स्ट देखना है अभी आपको, थर्ड वन इज द एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन. कौन सा देखना है आपको, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन. लिसन केयरफुली. सबसे पहले आप यहाँ पे हेडिंग दीजिए, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन. व्हाट इज माय एंथैल्पी ऑफ द सब्लिमेशन? द एंथैल्पी चेंज when 1 mole of the solid substance is directly converted into, उसका डायरेक्टली कन्वर्जन किस में होता है, गैसियस स्टेट में होता है, एट टेम्परेचर ऑफ इट्स बिलो द व्हाट, मेल्टिंग पॉइंट, is known as the enthalpy of sublimation. What is my enthalpy of the sublimation? The enthalpy change when 1 mole of the solid substance is directly converted into gaseous state at temperature below its melting point. उसका जो melting point उसके below को वो क्या होता है, गैसियस में कन्वर्जन होता है, is known as, उसे क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ द सब्लिमेशन कहते हैं. एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इज आल्सो नोन एज, उसे क्या कहते हैं, मोलर एंथैल्पी ऑफ द
सब्लिमेशन कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज अ मोलर एंथैल्पी ऑफ द सब्लिमेशन। इट इज अ रिप्रेजेंटेड बाय द, उसको किससे रिप्रेजेंट करना है, डेल्टा एच एस यू बी, दैट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ द सब्लिमेशन कहा जाता है। इफ द प्रोसेस ऑफ द सब्लिमेशन, जब सब्लिमेशन प्रोसेस, इफ द प्रोसेस ऑफ द सब्लिमेशन is carried out at a constant temperature and standard pressure is known as, उसे क्या कहते हैं, standard enthalpy of sublimation. What is my standard enthalpy of the sublimation? The process of the sublimation is carried out at constant temperature and standard pressure is known as, उसे क्या कहते हैं, standard enthalpy of the sublimation कहते हैं। For example, that is the first one is the iodine solid is converted into, conversion किसमें कर रहा हूँ, आयोडीन गैस में, एंड इट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी या सब्लिमेशन उसका है 62.4 किलो जूल पर मोल। जब सॉलिड आयोडीन है उसका कन्वर्जन गैसियस में करना है तो उसको कितनी एंथैल्पी लग रही है, 62.4 किलो जूल पर मोल लग रही है। नेक्स्ट वन इज अ सेकंड एग्जांपल इज दैट इज अ नैप्थ्यालीन। क्या, नैप्थ्यालीन, नैप्थ्यालीन सॉलिड उसका कन्वर्जन मेरे को गैस में करना है तो इट्स द एंथैल्पी ऑफ द सब्लिमेशन इज इक्वल टू प्लस 73 किलो जूल पर मोल है। एंड लास्ट अनदर वन इज एग्जांपल इज दैट इज ड्राई आइस। कौन सा आइस, ड्राई आइस। द एंथैल्पी ऑफ द सब्लिमेशन, उसकी ड्राई आइस की एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है 25.6 किलो जूल per mole है। This is a different example of the what, enthalpy of the sublimation. The enthalpy of the sublimation is related to the enthalpy of the sublimation. ये क्या है, the enthalpy of the sublimation is related to, किसको related है, enthalpy of the fusion. And another one is the enthalpy of the vaporization. ख्याल में रखिए, the enthalpy of the sublimation is related to enthalpy of the fusion and enthalpy of vaporization, and they are represented by enthalpy of the sublimation is equal to enthalpy of the fusion plus enthalpy of what, vaporization. ये फार्मूला ख्याल में रखिए। How to determine the enthalpy of the sublimation from the known the values of the standard enthalpy of fusion and standard enthalpy of the what, vaporization. एक एग्जांपल देता हूं मैं अभी यहाँ पे आपको। फॉर एग्जांपल, the enthalpy of the fusion of the sodium metal की enthalpy of fusion कितना है, enthalpy of fusion सोडियम मेटल इज द 2.6 किलो जूल पर मोल है। एंड दैट इज एंथैल्पी ऑफ द वेपोराइजेशन ऑफ द, किसकी, सोडियम मेटल के एंथैल्पी ऑफ द वेपोराइजेशन इज 98.0 किलो जूल पर मोल है। Then at 298 Kelvin temperature को, then we can easily determine the standard enthalpy of the sublimation of the, किसकी, सोडियम मेटल की। देखिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द सब्लिमेशन, सोडियम की एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कितना है 2.6 प्लस स्टैंडर्ड ऑफ एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन 98.0 इज इक्वल टू व्हाट, 100.6 किलो जूल पर मोल। फिर ख्याल में रखिए, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द सब्लिमेशन ऑफ द सोडियम मेटल की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द सब्लिमेशन कितनी है, 100.6 किलो जूल पर मोल है। Now the enthalpy of the sublimation is a simply, these three process is a simply represented by the, उसको simply आप represent कर सकते हो। Here is a, इधर लेना एंथैल्पी, क्या लेना है, एंथैल्पी लेना है। Here is a एंथैल्पी, ओके। Here is a, इधर लेंगे व्हाट इज विच स्टेट, सॉलिड स्टेट में के सब्सटेंस सॉलिड स्टेट,
हियर इज अ सबसे पहले ये सॉलिड सब्सटेंस का कन्वर्जन किसमें और लिक्विड में, दे आर नोन एज, उसे क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ द फ्यूजन कहते हैं। फिर दैट एंथैल्पी ऑफ द फ्यूजन इज अ कन्वर्टेड इनटू, उसका कन्वर्जन गैसियस में हुआ, दैट इज नोन एज, उसे क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। एंड लास्ट वन इज दैट इज जिस प्रोसेस में सॉलिड का डायरेक्ट कन्वर्जन किसमें होता है, लिक्विड में, दैट इज नोन एज, उसे क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ द व्हाट, सब्लिमेशन कहते हैं। दिस इज द थ्री important physical transformation of the enthalpies of the physical transformation. One is the enthalpy of the fusion, enthalpy of the vaporization, and enthalpy of sublimation. Okay, good day.